Good morning, students. This is your first lecture after your Diwali vacations. We will start with the 3.2 lesson Compare a Program. Your first lesson 3.1 is removed from the portions. आपको portion में नहीं है तो we will be starting from 3.2. Getting ready for the program. Now let's see, before organizing the program, what steps we have to do, how to organize the program, we will learn in this lesson. Good morning, friends. It is a pleasure for me to welcome you all at this festive occasion. Please take your seats. May I request you to keep your mobile switched off or on silent mode. Let us ring in it to the merry mode of youthful creative expressions and forget our preoccupations and ringtones for the time being. See, before starting the program, this is what the announcer is announcing. जो वहाँ पे आपका स्टेज के सामने डायस में जो ये रहते हैं अनाउंसर होस्ट रहते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है. तो दे आर ग्रीटिंग एवरीबडी saying good morning. It is a pleasure for me to welcome you to all this festive. यानी इस ओकेशन पे बुलाने के लिए वेलकम कर रहे हैं वो. प्लीज़ टेक योर सीट्स. मे आई रिक्वेस्ट टू कीप योर मोबाइल स्विच ऑफ. अभी वो अनाउंसर रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पे, बिकॉज वो बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आपका किसी का मोबाइल स्विच ऑन. Okay, let us ring to the merry mode of the youthful creative expressions and forget our preoccupations. यानी हम लोग सब कुछ भूल के अपने काम काज को सब कुछ भूल के अलग रख के अपनी प्रॉब्लम्स को whatever it is there in your mind, remove all this thing, keep aside और इस प्रोग्राम पे concentrate कीजिए. ओके, they are saying that. Festive means joyous, मतलब एकदम enjoyable atmosphere. Arrival of the dignitaries. Now what do you mean by dignitaries? Arrival means आना of the dignitaries. मतलब हम लोग इसको चीफ गेस्ट को अगर बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड द डिग्निटरीज. कुछ चीफ गेस्ट को लोगों को हम लोग इन्विटेशन देते हैं हमारे प्रोग्राम्स में आके वो शामिल हो जाए और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, तो दे आर कॉल्ड द डिग्निटरीज. आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द डिग्निटरीज हैव अराइव्ड. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सीटेड. I request our head girl, Miss Shubhada Murarka, to escort the dignitaries to the dais. Now what they are saying, that the dignitaries have arrived, मतलब जो चीफ गेस्ट हम जिसको मेहमानों को हमने बुलाया, they have arrived and I request you all to be seated. सबको बैठने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. I request our head girl. See, स्कूल में हेड गर्ल हेड बॉय वगैरह होते जो होस्ट करते, या we can say that they are in charge of that. तो the head girl Miss Shubhada Murarka to escort the dignitaries to the dais. मतलब जो हेड गर्ल है मिस शुभदा करके वो मेहमानों को डायस तक या स्टेज तक लेके आए, ऐसी वो कर रहे. ओके, रिक्वेस्ट कर रहे. commencement of the program. ओके, Honorable chief guest of the today's functions and an artist of the great renown Shri Charudatta Diwan, President of Balananda Education Society, Shri Avdut Patak, our principal, Dr. Ajinkya Parki, Vice Principal, Dr. Shaila Singh, all are invited guests, parents, teachers and my dear friends. On the behalf of the Balananda Vidyalaya, I extend a hearty welcome to you all. अभी ये कौन प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं? हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग? बालानंदा विद्यालय. ओके, एंड दे आर इन्वाइटेड द चीफ गेस्ट एंड हॉल चारुदत्ता दीवान, हु इज़ दैट द प्रेसिडेंट ऑफ बालानंदा एजुकेशन सोसाइटी, श्री अवधूत पाठक, द प्रिंसिपल ऑफ द बालानंदा विद्यालय, डॉक्टर अजिंक्य पारखी इज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ दैट, डॉक्टर शैला सिंह. All are invited. These are the guests invited, plus the parents, means students' parents, okay, and teachers and their friends.
मतलब जब प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है तो हम लोग इन सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, उनको विश करते हैं। ये जो आप अगर प्रोग्राम्स वगैरह आपने देखा होगा, इवन अपने स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, तभी कोई चीफ गेस्ट होते तो उनको कैसे ऑनर दिया जाता है पेरेंट्स को, गेस्ट को, तो वो सब आपने नोटिस किया होगा। तो दिस इज़ व्हाट दैट वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द इनॉग्रेशंस ऑफ आवर स्कूल आर्ट फेस्टिवल। व्हाई दिस पीपल्स आर गैदर्ड टू इनॉग्रेट। व्हाट डू मीन बाय इनॉग्रेट? इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना, कोई नई चीज़ का हम लोग शुभारंभ करते हैं तो इनॉग्रेट करते, तो वहाँ पे रिबन्स वगैरह बांधे जाते, तो दैट इज़ इनॉग्रेशन। तो ये किसके इनॉग्रेशन के लिए? स्कूल आर्ट फेस्टिवल के इनॉग्रेशन के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। Lighting the lamp. First what we'll do, you must have seen in the annual function and that we light the lamp. दिया जलाए जाते हैं, सब मेहमान वगैरह आके वहाँ पे दिया लगाते हैं। There is a lamp over there. Let us begin with the auspicious occasions with the something symbolic of knowledge and learning. And for this I would like to request all the honorable members on the dais to kindly light the traditional lamp and offer prayers. लेट अस बिगिन विद ऑस्पिशियस, मतलब ये बहुत ही अच्छा ओकेशन है ऑस्पिशियस। ओके, ऑस्पिशियस ओकेशन इज सिम्बॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो इट्स वेरी सिम्बॉलिक टू द नॉलेज एंड लर्निंग, सीखने के लिए। एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस, जो भी मेंबर्स आए हैं वो डायस में आके ये करें और काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प, जो लैम्प वहाँ पे रह लेते, तो सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है ऑनरेबल मेंबर्स को आके वहाँ पे लाइट करें एंड ऑफर द प्रेयर। भगवान को सबसे पहले हम किसी हर चीज़ भी कुछ भी करने से पहले भगवान को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, बाकी का आराम करते हैं काम को। तो इसमें भी पहली बार भगवान को याद किया जाता है, उनकी प्रेयर के तौर पर उनके सामने दिया जलाए जा रहे। Friends, look at the amazing quality of this lamp. When lit, not only does it carry the tremendous potential to break the darkness of the night, but also leaves away for the 1,000 other lamps to be lit from its flame. क्या बोल रहे हैं? ये जो दिया हम लोग लगाते हैं, ये सिर्फ अंधेरा को भगाने के लिए ही नहीं, बल्कि इस दिया से हम लोग बहुत और सारे दिए जला सकते हैं। मतलब ये सच्चाई है लाइफ की, कि पढ़ाई लिखाई से हम जो अंधेरे में में जी रहे उससे हम बाहर आ सकते, और हमारा ज्ञान जो है हम अगर किसी और को भी बांटते जाते तो उनकी लाइफ में भी वो रोशनी फैल जाती। तो इसका कहने का मतलब ये है, लाइटन टू द लैम्प इज नॉलेज, नॉलेज टू स्प्रेड लाइट। लाइकन टू द मतलब जिस तरह लैम्प ये होता है, वैसे ही नॉलेज भी क्या करता है, स्प्रेड करता है लाइट। मतलब नॉलेज जहाँ जहाँ नॉलेज फैलता है वहाँ उजाला होता है। इट इज़ नाइदर डिवाइड्स नॉट सब्सट्रैक्ट, इट ओनली हैड्स एंड मल्टीप्लाइज। यानी अगर ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही जाता है। ओके, तो ज्ञान बांटना अच्छी बात है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें आपको पता है, आप शेयर कीजिए उसको, दूसरे को स्प्रेड करते, ताकि उनको भी उस बारे में जानकारी हो। मिस अनगा भाटिया ऑन स्टैंडर्ड 7th एंड द ग्रुप विल नाउ सिंग द स्कूल सॉन्ग। आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है, पहले प्रेयर्स वगैरह होते हैं या सॉन्ग्स होता है या वेलकम डांस होता है, वेलकम सॉन्ग होता है, दैट इज संग। सो मिस अनगा भाटिया स्टैंडर्ड 7th, शी विल बी with her group singing the school song. Welcome and introduction of the guests. Now after that welcome we will be introducing the guests. जो मेहमान वहाँ पे आए हैं डायस में, तो उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दैट इज इंट्रोडक्शन। सॉरी, अतिथि देवो भव, दैट इज द इंडियन हिंदी सेइंग। अतिथि मतलब मेहमान, वो क्या है, भगवान के समान होते हैं। आवर इंडियन कल्चर रिगार्ड्स गेस्ट एज ए गॉड, दैट्स व्हाट आई से। हमारे यहाँ कल्चर है कि मेहमानों को हम लोग भगवान समझते हैं। लेट अस वेलकम एंड ऑनर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और ऑनर करते हैं जो ये मेहमान आए। डिस्टिंग्विश मतलब पहचाने, जिनका काफ़ी नाम है, ऐसे लोग। इट इज़ इंडीड आवर प्राउड प्रिविलेज टू मे हैव amidst us a very eminent personality from the field of art and culture, renowned artist. Okay,
A painter of international repute and proud recipient of many prestigious awards, President of Kala Ranjan Academy, Shri Charu Datta Diwan, I would request our principal to welcome him by offering a token of our love and appreciation. Okay, यहाँ पे किसको इन्विटेशन? ये पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट का एक जाने पहचाने से ये है व्यक्ति है, इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ कला रंजन एकेडमी, उनका नाम है श्री चारुदत्त दीवान। उनको एक करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए वो लोग क्या किया, प्रिंसिपल को बुला रहे हैं ताकि उनको फ्लावर्स वगैरह टोकन ऑफ लव दिया जाए और उनकी बारे में कुछ जानकारी दी जाए। 2 volumes of cherished lives of great artists are offering books because flowers might perish but books can stay ever। यानी हम लोग किताबें, फ्लावर्स वगैरह क्या बात में सूख जाते, पर किताबें वगैरह ऐसे है कि हम उसको अभी भी हमेशा अपने लिए फ्रेश रहता है। उसी स्टोरीज से जो भी हम पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, दे आर ऑलवेज फ्रेश। तो वो कभी वो क्या है, फूलों की तरह मुरझा नहीं जाते। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। ओके, पहले किसको ये किया जा रहा है, संबोधित किया जाएगा? चारुदत्त दीवान, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कला रंजन एकेडमी। ये वन मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड, उनको काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, उनका काफ़ी नाम है। तो प्रिंसिपल को बुलाया जा रहा है, उस अपना बालानंदन विद्यालय का स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जा रहा है टू गिव अ टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। थैंक यू सर। ओके, देन इट इज़ गिवन, इफ़ यू आर सीन इन द एनुअल फंक्शनल, फ्लावर्स वगैरह देने के बाद उनको थैंक यू किया जाता है। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द convener of this art festival, our art teacher। okay, convener मतलब a person who assembles people and organize the function। जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं उनको कन्वीनर बोलते हैं। और उसका ऑर्गेनाइजर कौन है? आर्ट टीचर है, रेस्पेक्टेड मिस शिल्पा संगानी, टू वेलकम द बीकॉन ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन। ओके, बीकॉन का मतलब है इम्पॉर्टेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सन हु इज इन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब वो एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन है जो दूसरे को इंस्पायर करते हैं। ओके, तो वी विल स्टॉप राइट नाउ हियर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी एक्सप्लेन टू यू टुमारो। दिस इज अ बिग लेसन, यू कैन गो थ्रू योर लेसन्स, अंडरस्टैंड। इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज अगर आप कोई फंक्शन आपने अटेंड किए हैं, इवन अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन ही अटेंड किए, तो आपको पता होगा कि कैसे फंक्शंस होते, पहले कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, आइडियाज़ वगैरह लिया जाता है, कैसे हो चलना चाहिए, क्या प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, किसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद में सब कुछ ऑर्गेनाइज होने के बाद में सब लोग अपने अपने सीट्स में होने के बाद जब डिग्निटरीज आते तो किस तरह उनके साथ ये करना चाहिए, उनको प्रशंसा कर उनके हॉनर किया जाता है। दैट इज़ ऑल। इफ़ यू, आई होप यू मैट हैव सीन दैट इज़ ऑल in comparing this program. So it will be easy to understand this lesson. Okay, remaining part I will be explaining tomorrow. So thank you.